Hello students, welcome to our channel Concept Point by Uma sir. Today I am going to discuss some important question for your board exam. Let's see here on the board students. Starting with question number 1. What is written here? The total factors of a prime number is. It is asking here that total factors of a prime number. तो प्राइम नंबर सपोज आई टेक एन एग्जांपल, जैसे मैं 5 एग्जांपल लेता हूं, एक प्राइम नंबर है। 5 को मैं प्राइम नंबर इसलिए बोलूंगा क्योंकि 5 जो है ये डिविजिबल बाय 1 होगा। जब 1 से डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा 5। सिमिलरली व्हेन वी डिवाइड 5 by 5 then it will becomes equal to 1. So I can say that 5 is divisible by 1 and 5 only. So every prime number has only 2 factors. So our right answer will be C. Next question. See here students. What is written here? If HCF of A into B, it is given here HCF of two numbers are 45. And A into B, that means that product of these two numbers is given here 30375. Then LCM of A into B, it is asking here what will the LCM of these two numbers. So generally we know a formula, that is HCF into LCM. We can write product of two numbers, that means that A into B. Now putting here value of HCF is given here 45. So I can write here 45 into LCM, that is equal to A into B. So finally LCM becomes equal to, and the value of A into B is given here 30375. So I can write here 30375. So finally LCM becomes equal to 30375 divided by 45. If we divide it by 45, then it will be equals to 675. So D is the right answer, dear students. See here, question number 3. What is written here? If 1 0 of a polynomial of the form, it is given here a polynomial px equal to, it is written here x square plus ax plus b is negative of the other. It is saying here 1 0 is the negative of the other. That means alpha equal to minus beta. Then there are some options written, which of them will be correct. So I can write here alpha plus beta is equal to minus ay लिखा जाता है, तो minus ay 1 लिख सकते हैं। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा है, तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए का जो वैल्यू होगा वो 0 आएगा, यानी कि अगर देखा जाए ए 0 जैसा ही हो गया। इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि लीनियर टर्म जो होगा वो 0 होगा। लीनियर टर्म मतलब एक्स के साथ जो भी है कोएफिशिएंट, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में देखा जाए कि किसमें लीनियर टर्म 0 लिखा हुआ है, तो देखिए यहां लिखा हुआ है हैव नो लीनियर टर्म, यहां भी लिखा हुआ है हैव नो लीनियर टर्म, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों राइट होगा, और वेयर इज ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो होगा वो रॉन्ग होगा। नाउ अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू लिखा जाता है सी बाई ए, सी बी बाई ए, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 लिखा जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के जगह पर मैं भी अल्फा यहाँ पर लिख सकता हूं माइनस बीटा इंटू बीटा, सो बी बाई 1, दैट मीन्स ओनली बी। जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बी का वैल्यू आएगा माइनस बीटा का स्क्वायर, विच इज ओनली पॉसिबल, बीटा कैन नॉट बी नेवर नेगेटिव, विच इज ओनली पॉसिबल इफ बी विल बी नेगेटिव। B negative, that means that constant term is negative. So we can say that has no linear term with constant term negative, यानी कि option A will be the right answer. Now
Let's see question number 4. The value of k for which the lines, there are two lines. First line is 5x plus 7y is equal to 3, and the equation of second line is given here, 15x plus 21y is equal to k. Coincide. So for a coincidence line, we know that a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. So value of a1 by a2 is 5 by 15, b1 by b2 7 by 21 is equal to c1 by c2, यानी कि 3 by k लिखा जा सकता है. सिंपलीफाई में करूंगा तो इसका वैल्यू 1 by 3 आएगा, इसका भी 1 by 3 आएगा, ये लिखा जा सकता है 3 by k. These two terms will be equal, so I can write 1 by 3 equal to 3 by k. On cross multiplying, k equals to 9, so right answer will be k equals to 9. So option A is the right answer, dear students. Now moving to the next question number 5. Let's see what is written here. Find the nature of the root for the quadratic equation. It is given here quadratic equations. Then we need to find the nature of this quadratic equation. In order to find the nature of quadratic equation, we find the value of d. That means that discriminant value of d. We need to find the value of d. So we know that d is equal to b square minus 4ac. Here you can see value of b is minus 3. तो b का वैल्यू हो गया माइनस 3 माइनस 4a, a का वैल्यू है 1 देखा जा सकता है, यहाँ 1 हो गया, और c जो हो गया आपका 11 हो गया. 9 का स्क्वायर आप जानते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 44 होगा. 9 minus 44 that will equal to minus 35. So we can say here d is negative. I can write d less than 0. When d less than 0, we can write that the roots are not real. Roots are not real, यानी कि इसका रूट जो होगा वो इमेजिनरी रूट्स होता है. तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है. हैज नो रियल रूट्स, यानी कि ऑप्शन ए विल बी राइट. Let's see question number 6. What is written here? If the common difference of AP is 5, if the common difference of AP is 5, common difference of AP is given here 5. So D is equal to given here 5. Then what is the value of A18 minus A13? A18 minus A13. So we know that for an we write a plus n minus 1 into d, where a is called the first term of the AP and n denotes the nth term of the AP, and d is the common difference. So A18 we can write a plus 17d minus a plus 12d. फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई जब करूंगा तो वो आएगा a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d. a से कैंसल आउट हो गया, 17d माइनस 12d दैट कैन बी इक्वल टू 5d. और d का जो वैल्यू दिया हुआ देखिए 5 दिया हुआ है. 5 जब यहाँ पे रखूंगा तो 5 into 5 दैट विल बी इक्वल टू 25. सो 25 विल बी द राइट आंसर. C is the right answer, dear students. Now let's see 7th number. What is written here? D and E are respectively points on side AB and AC of triangle ABC. This is a triangle ABC. ABC. There are 2 points D and E. D and E are respectively points on the side AB. On the side AB, there is point D. On side AC, it is given here E. Such that AD is equal to 2 centimeter. AD is equal to 2 centimeter. BD is equal to 3 centimeter. BD is equal to 3 centimeter. EC is equal to 1.5 centimeter. EC
1.5 centimeter. D parallel BC given here. Then the length of AE. It is asking here length of AE. Let it be x. According to Thales theorem, we can write in triangle ABC, AD by BD is equal to AD के सामने वाला देखिए इधर में क्या लिखा हुआ है AE इक्वल टू लिखा जाएगा AE अपॉन EC। नाउ AD का वैल्यू दिया गया 2/3 इज इक्वल टू AE हो गया आपका x बाई 1.5 लिखा जा सकता है। जब मैं इसे काटूंगा तो वो आएगा 0.5। दैट मीन्स दैट x का वैल्यू आएगा 2 इंटू 0.5। फर्दर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। If the point K0 divides the line segment joining the points A2 minus 2 and B minus 7 4 in the ratio of 1:2, then the value of K is, it is given here, it is एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन का एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 minus 2, पॉइंट B देखिए इधर दिया हुआ है -7, 4 और इस लाइन पर एक कोई पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपका K, 0। पॉइंट P जो है इस लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स दैट AP बाई BP का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 1/2। आई कैन राइट हियर 1 और यहां लिखा जा सकता है 2। तो पूछा जा रहा है K का वैल्यू क्या होगा। यहां हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं x कोऑर्डिनेट के साथ, इस रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं इस x के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। दैट मीन्स दैट x इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से के साथ तो -7 होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ साथ तो होगा आपका 4 डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो का सम यानी कि 1 + 2 और x का वैल्यू देखिए k दिया हुआ है तो k इक्वल टू हो गया, आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो -3/3 आएगा, कट गया तो ओवरऑल वैल्यू आ गया -1। सो k का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा -1। D इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। If sin theta minus cos theta equal to 0, then value of sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is, here it is given sin theta minus cos theta equal to 0. I can write here sin theta is equal to cos theta and sin and cos both are equal at theta equal to 45 degree. So value of theta will be 45 degree. आपसे यहाँ पूछा गया है sin to the power 4 plus cos to the power 4 थीटा, थीटा के जब रख सकते हैं 45 डिग्री, जब रखूंगा तो ये वैल्यू आएगा sin के पावर 4 45 डिग्री प्लस cos टू दी पावर लिखा जा सकता है 4 45 डिग्री। cos 45 का वैल्यू होता है आपका 1/√2 का होल 4 प्लस लिखा जा सकता है 1/√2 टू दी पावर होल 4। इसका वैल्यू आएगा आपका 1/4 प्लस 1/4। जब मैं 4 एलसीएम लूंगा इसका वैल्यू होगा 2, कट गया, इसका फाइनली वैल्यू आएगा 1/2। सो 1/2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट let's see next question dear students। question number 10। what is written here, a ladder 20 meter long, एक लैडर है जो 20 मीटर लॉन्ग है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वॉल, एक दीवार है, एक वॉल है, एक लैडर है, इसका लेंथ दिया हुआ आपका 20 मीटर। ये लैडर जो है इसके टॉप पर रीच कर रहा है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल, लैडर जो है
वॉल के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द वॉल, आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द दिस वॉल। सो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सोल्व करने का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होता है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना होता है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू फाइंड आउट। सो इन दिस ट्रायंगल वी कैन से दैट this is perpendicular here and that is this is hypotenuse and this is base. It is given here hypotenuse and we need to find base. So ratio of base and hypotenuse will be cos. So I can apply here cos 30 degree is equal to b by h लिखा जाता है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 is equal to b जो होगा वो ए बी होगा, h दिया हुआ आपका 20, देखिए 10 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, यानी कि ए बी का जो लेंथ होगा वो 10√3 सेंटीमीटर होगा, यानी कि फाइनली हमारा आंसर होगा 10√3 सेंटीमीटर। सो बी इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। Let's see next question, dear students. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at its center. The length of the chord is. What is saying here? एक सर्कल है, इस सर्कल का कोई एक कॉर्ड है जो सेंटर पे एंगल बना रहा है 90 डिग्री। The chord of the circle is subtending 90 degree at the center. That means that it is given here 90 degree. And the radius of this circle is 10 centimeter. It is given here 10 centimeter. It is also given here 10 centimeter. वो लिख देता हूं यहाँ A और ये हो गया B. Then what is asking? Then the length of the chord. That means what will be the length of AB? Now by applying Pythagoras theorem in this triangle, we can write AB square is equal to OA square plus OB square. So AB square is equal to OB का वैल्यू है आपका 10 प्लस 10 का स्क्वायर होगा, फाइनली इसका वैल्यू आएगा 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 200। दैट मीन्स दैट AB इज इक्वल टू लिखा जा सकता है √200 और √200 का वैल्यू होता है 10√2 सेंटीमीटर। सो 10√2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, see here what is written in question number 12. A solid is hemispherical at the bottom and conical above it. मतलब नीचे से कोनिकल है, एक सॉलिड इस तरह से है कि नीचे से कोनिकल है और ऊपर से आपका ए सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम, नीचे से हेमिस्फेरिकल है एंड कोनिकल अबव इट, और इसके ऊपर जो है वो कोनिकल है, मतलब कोन एक रखा हुआ है, इस तरह का एक सॉलिड है। इफ द सरफेस एरियाज ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, दैट मींस दैट सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आर इक्वल। So surface area of cone is pi r l is equal to surface area of the this hemisphere. Surface area of the hemisphere is equal to, we can write here pi 2 pi r square are equal. Then what is written? If the surface areas of the two parts are equal, then the ratio of its radius and the slant height of the conical part. रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो पूछा गया है। तो देखिए पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, आर से एक आर कैंसल आउट हो गया, यानी कि बचा एल इज इक्वल टू 2r। व्हाट इज आस्किंग हियर? रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो, यानी कि r/2 का रेशियो, और r/2 का रेशियो लिखा जा सकता है 1/2। So right answer option is 1:2. So see here option B is right here. See here. See here what is written? If the radius of a sphere is increased by 100%,
radius of a sphere is increased by 100%. Let the original radius be r. Let the original radius be r. It is asking here, it is given here, if the radius of a sphere is increased by 100%. पहले रेडियस r था, अब रेडियस 100% बढ़ गया, तो r से इंक्रीज कर गया, यानी कि r प्लस r होगा। अब न्यू रेडियस जो होगा वो 2r होगा, क्योंकि 100% बढ़ रहा है इसीलिए। नाउ देन the volume of the sphere is increased by, then what will be the increase in the volume of the sphere? So originally volume of the sphere were 4 by 3 pi r cube. Now it becomes 4 by 3 pi. In place of r we can write here 2r to the power whole cube. That means that 4 by 3 pi r cube, यानी कि इसे लिखा जा सकता है 8r cube. Increase, this is new volume and this is original value volume. Increase in volume will be equal to this minus this, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। increased in volume is equal to 4 by 3 pi 8r cube minus 4 by 3 pi r cube लिखा जा सकता है। तो यहां से देखिए कॉमन है आपका 4 by 3 r cube, तो यहां बचेगा सिर्फ 8 minus 1 बचेगा। दैट मीन्स दैट 4 by 3 pi r cube इंटू लिखा जा सकता है 7। परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इंक्रीज in volume is 4 by 3 pi r cube into 7 divided by original volume that was 4 by 3 pi r cube। 4 by 3 से 4 by 3 कैंसिल आउट, into 100 करते हैं, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर क्यू से कैंसिल आउट हो गया। 7 into 100 that is equal to 700%. So 700% is the right answer. Option C is the right answer. Next, see here, what happened? There is some technical issue here. चलिए दोस्तों, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा 14 नंबर में क्या दिया गया था? द एरिया ऑफ सर्कल व्हिच सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर इज। क्या बोला गया था कि द एरिया ऑफ ए सर्कल सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, circumference of circle is given here, so we can write 2 pi r is equal to 22 सेंटीमीटर होगा। तो 2 इंटू लिखा जा सकता है, पाई का वैल्यू हो गया आपका 22/7 इंटू r इज इक्वल टू लिख सकते हैं 22। 22 से 22 कैंसल आउट हो गया, सो r का वैल्यू होगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। पूछा गया था एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स दैट 7/2 का होल स्क्वायर। सो फाइनली जब सिंप्लीफाई करूंगा तो 22/7 इंटू लिखा जा सकता है 7/2 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, और ये देखिए 11 टाइम्स कैंसल आउट हो गया। दैट मीन्स दैट इट कैन बी रिटन हियर 7 से 7 आउट कैंसल हो गया, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। So 77 centimeter square is the right answer. Is there missing anything? Pi r square 7/2 into 7/2. Everything is right. So we are right. 77 is the right answer. 77 centimeter square is the right answer. Let's see again. R is equal to 7/2. Area of circle we can write pi r square 22/7 into r square 7/2 into 7/2। 7 से 7 आउट कैंसिल हुआ, और देखिए ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, यानी कि 77/2। अगर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आपका 38.5 होगा। दैट मीन्स दैट डी इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं हम लोग। 15 नंबर देखते हैं, बार बार इससे हो रहा है।
नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 15, द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशंस आर। मीन दिया हुआ है, मीन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, मीन इजिकल टू लिखा हुआ है आपका 14 दिया हुआ है, एंड मीडियन, मीडियन जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है 15। तो क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ द मोड। तो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू लिखा जाता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन लिखते हैं, सब कुछ का वैल्यू रख देते हैं। तो 3 इंटू मीडियन 15 हो गया, माइनस 2 इंटू मीन 14 हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 45, माइनस होगा आपका 28, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 17। सो 17 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सी what is written here in the 16th number, a bag contains 3 red, there are 3 red ball, 5 black ball and 7 white ball, and 7 white balls are there in a bag. A ball is drawn from the bag at randomly, one is taken up at randomly from the bag. The probability that the drawn ball is not black, यानी कि ब्लैक नहीं, तो ब्लैक नहीं तो कौन, रेड एंड व्हाइट। रेड एंड व्हाइट का टोटल नंबर हो जाएगा 10 फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आपका 15। सो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद इसका वैल्यू आएगा आपका 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये होगा आपका 2, सो आई कैन राइट हियर 2/3, सो राइट आंसर इज 2/3, option D is the right answer. Now next 17th number, see what is written, 5x sec theta and 5x by tan theta, then the value of 5 into, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इसके लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू लिखा हुआ है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, 5x इक्वल टू क्या लिखा हुआ था आपका, sec स्क्वायर, sec theta only, it was written only sec theta, squaring both side we can write 5x square is equal to 25x square is equal to sec square theta। सिमिलरली इसे भी स्क्वायर कर लेता हूं तो ये आएगा 25/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटेन tan स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज रिटेन हियर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, सो यहाँ 5 कॉमन ले लेता हूँ। जब 25 कॉमन ले लूंगा तो इसका वैल्यू लिखाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। It 25 can be written into 5 into 5, x square minus 1/x square is equal to हो गया आपका 1। सो 5 into x square minus 1/x square का जो फाइनली वैल्यू होगा 1/5 होगा। सो 1/5 is the right answer, B is the right answer। Next, see question number 18, if sin a plus sin square a is equal to 1, then the value of cos square a plus cos to the power 4a का वैल्यू पूछा गया है। What is given here, sin a plus sin square a is equal to 1, then what will be the value of this term, these terms? So it is written, I can write here sin a plus sin square a is equal to 1, that means that sin a is equal to 1 minus लिखा जा सकता है, इसे लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर a, और लिख सकता हूं इसे साइन a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर, सो आई कैन राइट हियर कॉस स्क्वायर a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू लिखाएगा कॉस टू द पावर 4a। नाउ व्हाट इज आस्किंग हियर, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4a पूछा गया है। साइन स्क्वायर की जगह फिर से रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉस टू द पावर 4a।
सेंड कर देते हैं, सेंड करूंगा तो ये वैल्यू बचेगा 1 इक्वल टू लिखा जा सकता है cos स्क्वायर a प्लस cos टू द पावर 4a. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. सो 1 इज द राइट आंसर. 19th नंबर देखा जाए. assertion reason if nth term of an AP is 2n plus 1. What is written here? Nth term of AP Tn is equal to written here 2n plus 1. Then the sum of the first 3 term is 15. फर्स्ट 3 टर्म का सम पूछा गया है, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 पूछा गया है. T1 आई कैन पुट हियर 1, सो 2 प्लस 1 होगा आपका T1 का वैल्यू प्लस T2 के लिए 2 रख दीजिए तो T इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 होगा. T3 के लिए रखेंगे 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 लिखा जाएगा. सो इसे लिखा जा सकता है 3, यहाँ लिखा जा सकता है 5 और यहाँ लिख सकते हैं आप 7 लिख सकते हैं. ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 15. दैट मीन्स दैट if nth term of an AP is 2n plus 1, it's okay, very good. Then the sum of its first 16 term is 15. It is written right. So assertion is right. Now see what is the reason here. The sum of the first 16 term of an AP, the sum of the first 16 term of an AP 1 0 1 comma 0 comma 2. What is written here? The sum of the first 16 term of the AP 102 is 1402. The sum of the 16th term of an AP, the sum of the 16th term of the AP is, it is written here, I think ये नहीं लिखा हुआ होगा. The sum of the first 16 term is, the sum of the first 16 term, A16 कैलकुलेट करता हूँ. A16 लिखा जाता है 16 बाई 2 इंटू 2a. A का वैल्यू हो गया आपका, देखिए यहाँ पर था 3 प्लस 16 माइनस 1 दैट विल इक्वल टू 15 इंटू D. D देखिए AP जो बना है इसका कॉमन डिफरेंस था आपका 2, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, तो लिखता हूँ तो ये 8 इंटू होगा आपका 6 प्लस 30. सो 8 इंटू हो गया आपका 36, मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका, मल्टीप्लाई करिएगा तो हो गया आपका 288. तो सम ऑफ द 16 टर्म विल बी, the sum of the 16 term will be 288, not 420. So only assertion is right. Only assertion is right, but reason is not the correct explanation, as well as reason is not correct. Now moving to the 20th question. What is written here? Assertion: in a triangle in a right circular cone, the cross section made by a plane parallel to the base is circle. क्या बोला गया है कि एक कोन है, इस कोन के पैरेलल बेस में क्रॉस सेक्शन कट कर दिया जाएगा तो उसका बेस सर्कल होगा. यस, assertion is right here. If the volume and the surface area of solid hemisphere are numerically equal, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है. क्या चीज का? if the volume and surface area of the solid hemisphere, if the volume and surface area of solid sphere are equal, that means volume of a sphere हम लोग जानते हैं 4/3 लिखा जाता है. हेमिस्फीयर, it is writing here हेमिस्फीयर 2/3 पाई RQ लिखा जाता है is equal to surface area लिख सकते हैं 3 पाई R स्क्वायर. सो कैंसिलिंग आउट, इससे ये कैंसिल हो गया. 2/RQ से आपका यहाँ से यहाँ कलर कटा गया, R रह गया तो बचा 2/3 इजकल टू लिख सकते, 2/3 इंटू R इजकल टू लिखा जा सकता है 3. सो 2R इजकल टू 9 हो गया. R का वैल्यू आ गया आपका 9/2. R इक्वल, देन द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 9 यूनिट. तो रेडियस का वैल्यू है तो डायमीटर जो होगा वो ऑटोमेटिक R का 2 टाइम्स होगा. R इंटू 9/2 करूंगा तो यानी कि रीजन जो है वो सही है, रीजन भी सही है
आपका रीजन जो है वो सही है, रीजन इज राइट, रीजन इज करेक्ट, reason is correct and assertion is also correct, but the reason is not the explanation of the assertion. This is all about today's session, dear students. If you like our videos, then share and subscribe as much as you can. Share this video with your friends as well, dear students. Thanks for watching our videos. Stay in contact with us.